Dharavi, the largest slum in Asia and the third largest in the world, will undergo a redevelopment. Last week, the Adani Group backed the redevelopment project of Dharavi by bidding 5,069 crore rupees and trumping DLF. Out of the 300 hectares of land parcel, the government has notified 250 hectares for the redevelopment project. Now, this is the biggest redevelopment project that is being undertaken by the SRA since its inception, and the government is planning to complete the rehabilitation of the slum dwellers within 7 years of the beginning of the construction. But while on paper this project looks very ambitious, the task in front of Adani Realty is humongous. There are multiple layers of complexities in Dharavi. While slum dwellers living in cramped, matchbox-sized rooms and scanty living conditions is what comes to our mind first, when we talk about Dharavi, the slum also has a commercial side. Dharavi is a thriving abode of many small and medium-scale industries, from leather to food packaging to waste recycling. Dharavi houses the unorganized sector industries. There is no official data, but according to one estimate, Dharavi has approximately 5,000 business entities with 15,000 in-house single-room factories for production. However, the most prominent among all the SMEs is the leather industry. Most of these units process the animal skin that comes from slaughterhouses and uses in manufacturing leather goods, bags, purse, wallets, etc. These products are then exported to foreign brands in very large amounts. The ecosystem has developed in Dharavi over the years. However, with the redevelopment, the question is what will happen to these industries and those who are making their living out of it? How and where they will be rehabilitated? To understand this, we spoke to leather factory owners and managers and the workers in Dharavi. Let us have a look at this report by my colleague Shashank Nair. Many of the leather goods shop owners have been doing business here for more than 30 to 40 years. And are worried that their business may be lost if they are not given space in the same location. Some say the market has existed for 60 years and it has now created an ecosystem. Thus, it does not need any development. रीडेवलपमेंट में जा रहा है तो बिजनेस तो डल भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, दोनों चीज़ हो सकता है। क्योंकि अगर रीडेवलपमेंट हो रहा है तो अभी हम लोग जिस जगह पे है वही जगह पे होना चाहिए रीडेवलपमेंट के बाद। नहीं तो ऐसा ना हो कि मार्केट उठा के दूसरी जगह डाल दे, क्योंकि पब्लिक को ये लोकेशन पता है तो पब्लिक यहाँ पे ही आ सकती है। धारावी में बिजनेस करने का क्या बेनिफिट होता है आपको? धारावी का बिजनेस करने का ये बेनिफिट है कि धारावी का पूरा वर्ल्ड में पता है कि लेदर मार्केट यहाँ पे है धारावी में। तो आप कहीं पे कोई भी सर्च करेगा तो गूगल में भी आप सर्च करोगे तो धारावी का ही लोकेशन बताएगा कि लेदर मार्केट धारावी में ही बेस्ट है और पूरा वर्ल्ड से लोग यहाँ पे आ सकते हैं इजीली। और ये पूछना था कि जैसे आपके कितने साल से बिजनेस है यहाँ पे? हमारा 35-40 ईयर्स से है। ठीक है। मेरे डैडी ने स्टार्ट किया था तब से। देखो क्या है, यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, छोटे छोटे व्यवसाय। तो अभी ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को शिफ्ट करना बोलो तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है कि लोग इसी के पीछे पीछे भाग के आएंगे, हम किधर भी ले जाके शिफ्ट कर देंगे तो उधर भी हमारे क्लाइंट आएंगे। ऐसा नहीं है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, 1-2 क्लाइंट से ही चलती है। अगर वो उतना दूर नहीं आ सकते, उनको नज़दीक मिल जाएगा तो वो उनसे काम करने लगेंगे, यहाँ बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि इसी जगह पे मिले, ये बहुत ज़रूरी है। से मैं बोल रहा हूँ, ये शॉप है, लेदर शॉप है। ऐसा है कि ये बहुत पुरानी मार्केट है, मतलब मैक्सिमम इस मार्केट को 60 से 65 साल हो गया है। तो ये मार्केट कैसा जमाया हुआ है। तो ये मार्केट को अगर कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी बिजनेसमैन या बड़ा आदमी कोई भी डेवलप करने के लिए चाहता है तो आउट एरिया को करे ना। ये तो ऑटोमेटिक यहाँ बिजनेस बहुत बड़ी बिजनेस है। धारावी में आपको बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री मिलेंगे जहाँ पे हर चीज़ की फैक्ट्री है, जूते की है, लेदर की है, कपड़े की है, हर चीज़ की फैक्ट्री है। यहाँ पे डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि ऑटोमेटिक यहाँ पे डेवलप हो चुका है धारावी में। फिर आप लोग ऐसा करेंगे, हम लोग को यहाँ से डेवलप करके आउट जगह पे शिफ्टिंग करेंगे तो हमारा कैसा है, इंडिया के कस्टमर नहीं है, आउट ऑफ कंट्री के हैं। साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ये सब फॉरेनर लोग जो आते हैं उनको मालूम है धारावी लेदर मार्केट में वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है। एशिया का नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है लेदर लाइन धारावी। ये सब जानता है, दुनिया जानता है। तो ये चीज़ बेटर होएगा कि
आप वहीं अलग कहीं आउट इलाका में करें, मुंबई में बहुत ऐसा जगह है, मुमरा है, गोवंडी है, ये सब जगह पे कीजिए डेवलप। यहाँ पे तो डेवलप है ही है, धारावी में कोई चीज़ की कमी नहीं है। According to locals, 60 to 70% of laborers living in Dharavi are from UP and Bihar. If the market is shifted in the redevelopment, they will face problem in finding manpower. According to the Dharavi redevelopment plan, commercial tenements are promised an area of 225 square feet, but additional space will have to be bought at the cost. Hazardous industries will not find any space in this project. Many laborers who work in Dharavi's industrial units have made the slum dwelling their home. They now worry whether the redevelopment will affect their rosy roti. And more so, they are clueless about what the redevelopment means for them. नहीं, अभी तक तो सर ऐसा कोई ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं हुआ। लोग अपनी अपनी मनगढ़ंत बातें करते हैं और लोग इस चीज़ से अभी मेरे ख्याल से कोई नॉलेज किसी को नहीं है, यहाँ धारावी के अंदर तो नहीं है कि रियल में हमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। हमारे पास फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी मालूम नहीं है। तो कोई आके लैंड एक्वायर करके और ऐसा अगर नहीं देगा ये सब, तो ये तो डेवलपमेंट, फिर मैं नहीं समझता कि इसको हम लोग डेवलपमेंट बोलेंगे। देखिए, मैटर ये नहीं होता इम्पोर्टेंट हमारे लिए कि किसने कितना बोली लगाया, किसने क्या है। बात हो रही है रीडेवलपमेंट की, बोली लगाया। तो डेवलपमेंट सर हम ये नहीं जानते कि अभी यहाँ क्या होने वाला है, तो हम किसी को अपोज या अगेंस्ट नहीं कर सकते। लेकिन डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो लोगों का क्या डेवलपमेंट होगा। लोग पहले तो ये जानना चाहते हैं कि अगर उनके पास अभी जो भी है फर्स्ट टायर या सेकंड टायर और कितना स्क्वायर फीट, अगर उससे बेटर और उससे ज़्यादा मिलेगा तो इसको मैं डेवलपमेंट समझूंगा। और उससे अगर उतना नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा, भले बेटर मिले, तो इसको मैं डेवलपमेंट नहीं समझता। क्योंकि देखो, धारावी एक स्लम है, ये गरीब लोग यहाँ पे ज़्यादातर जो मैक्सिमम कैपेसिटी वो आप देखेंगे तो गरीब लोगों की बस्ती है। तो उनको सिर्फ बेटर हाइजीनिक प्रोवाइड करना ज़रूरी नहीं है, उनको मोर प्रोवाइड करना ज़रूरी है। तो अगर उनको इसके साथ साथ ज़्यादा मिलेगा तो फिर ठीक है, नहीं तो 15 लाख 12 लाख की आबादी है, फिर वो भी बेचारे अगर उनके साथ सही नहीं होगा, उनको सिर्फ अच्छे ही मिल जाए, हाई राइज बिल्डिंग में ही मिल जाए, उनकी रोजी रोटी चल रही है, वो बंद हो जाए तो क्या मतलब है हाई राइज बिल्डिंग में रहे। However, President of a Leather Association in Dharavi has welcomed the decision. कि ये प्रोजेक्ट जो अदानी ने लिया है, अगर इसका डेवलपमेंट वो अच्छी तरह से करते हैं तो ये बहुत खुशी की बात है। हम लोग इससे सब सहमत हैं और हम लोगों को हमारी जगह मिलनी चाहिए, हमारा कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। सर, हमारी मांगे ये है कि हम लोगों को अच्छे तरीके से सिस्टमेटिकली बैठा करके दे दें, और क्या। Now be the first to know about the latest updates on our new news app. Go on your Android or iOS, search for HW News Network. Download our app, choose the language you prefer to get updates in, and be up to date with the latest news.